A very good morning to class 5 students. I hope you all are fine. Students, in today's class we are going to begin a new chapter, chapter 6, fractions. Let's start. We will begin it in a fresh page of your maths copy, putting today's date 17 August 2020, classwork, chapter 6, fractions. What are the facts related to fractions? So we will begin with the definition. What is a fraction? It represents a small part of a whole. Whole means a complete thing. Okay, for example, you can look at it at this rectangle. It has how many parts? 1, 2, 3, 4 parts. So 4 parts make a complete rectangle, a whole rectangle. And the shaded parts are known as numerator and the total parts are known as denominator. So what is numerator of a fraction? Number of selected parts. What are the selected parts here? Basically the shaded parts, which you can see 2. Denominator are total parts. How many total parts are there? 1, 2, 3, 4. So here I have written denominator 4. So 2 by 4 represent a fraction. Okay, or basically the shaded portion. There are many types of fractions, students. Let us begin one by one with like fractions. What are like fractions? They have same denominator. So if you see 2 or more fractions having same denominator like 2 by 8, 3 by 8, 7 by 8, they are called like fractions which has same denominator. Number 2, unlike fractions. They don't have same denominator. You see a group of fractions where their denominator are not same. 5, 6, 8, they are not same. They are called unlike fractions. Unit fractions. Unit fractions have 1 in numerator. That means if you find fractions having 1 as numerator, that fraction is called unit fraction. Unit means 1. Next, equivalent fractions. They represent same part of a whole. Equivalent, equal value. So the fractions which has same value, equal value are called equivalent fractions. For example, 1 by 2 is half of an object. 2 by 4 is another half. If I draw a rectangle having 4 equal parts, 1, 2, 3, 4, and I shade 2 parts out of 4, this is nothing but half, right? Similarly, if I have a rectangle having 6 parts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and I shade first 3 parts, this again shows half of the portion, half of the object which is shaded. So 1 by 2, 2 by 4, 3 by 6 are equivalent fractions. Okay, and later in the questions, through the questions, I will teach you how to find equivalent fractions. E part, proper fraction. What do you mean by proper fraction? The numerator is less than the denominator. If you look at this, 11 by 18, here 11 is numerator, 18 is denominator, 11 is less than 18, so it is a proper fraction. 14 is less than 20, it is proper fraction. What if the numerator is greater than the denominator? Then they are called improper fractions. Look here, 18 is greater than 15, 9 is equals to 9. So when the numerator is equals to denominator or numerator is greater than the denominator, they are called improper fraction. Okay, so remember, अगर आप कोई भी फ्रैक्शन थ्रू द फिगर दिखा सकते हो, ड्राइंग दिखा सकते हो, लाइक 4 by 5, दैट मीन्स मैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट बना सकती हूँ, शेप बना सकती हूँ रेक्टेंगल. आई नीड टू हैव 5 equal parts, 1, 2, 3, 4, 5 and 4 shaded parts. I will shade 4 parts out of 5. That will represent this fraction, isn't it? But अगर मेरे से बोला जाए 5 out of 4, is it possible? क्या मैं 4 boxes, equal boxes बना के 5 shade कर सकती हूँ? No, they are called improper fraction. And if we have to shade 5 out of 5, it doesn't make sense. ये भी सेंस नहीं बनाता है, ये भी improper fraction होता है. क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन में होता है कुछ पार्ट शेडेड होते हैं, ना कि सारे पार्ट शेडेड, तो फ्रैक्शन का कोई मतलब ही नहीं है. सो हेयर इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर. G part, mixed fraction. They are the combination of a whole number and a proper fraction.
Look at the example 3 2/7. 3 is a whole number. 3 is complete. आप ये example ले सकते हैं 3 chocolates and 2/7 of a chocolate. 3 complete chocolate है और एक chocolate का 2/7 आपके पास piece है. So ये combination है whole number and a proper fraction का. Proper fraction where the numerator is less than the denominator. Numerator is less than the denominator. So उनके combination को mixed fraction बोलते हैं. Now we will move to the exercise. Page number 73 of your book. The circle questions we are going to do in the book only, and which are not circled we are going to do in the copy. Let's start putting today's date. That is 17.8.20. We are taking it as our classwork. Number 1. Classify the following fractions as proper, where the numerator is less than denominator, improper where the numerator is greater than denominator, and mixed fraction which is a combination of whole and proper fraction. सबसे पहले हम mixed fraction करेंगे. हम क्या करेंगे? proper के लिए p, improper के लिए i and mixed के लिए m लिखेंगे. mixed find out करना बहुत easy है. This is mixed combination, combination, combination. Now proper means numerator is smaller. 8 is smaller than 5? No. तो क्या है वो? improper. 6 is smaller than 17? Yes. This is proper. 9 is smaller? Yes. Proper. 14 is smaller? No. Improper. 21 is smaller than 4? No. So it is improper. 6 is smaller than 8? Proper. 7 is smaller than 10? Proper. This way we have written the initials PIM for the 3 types of fractions. Next question number 4. Fill in the missing numbers to make equivalent fractions. Equivalent means equal value. Now carefully listen to the teacher. See students, 2/7 का equal fraction कैसे पता करेगा? सबसे पहले तो जो blank है उसको ध्यान देना है, right? 2 and blank. जो गिवन है हमें नंबर्स वो क्या है? 7 and 21. 7 पहले छोटा था जाके बड़ा हो गया. दैट मीन्स कि मल्टीप्लाई हुआ है. रिमेंबर, जब छोटे से बड़ा नंबर हो जाता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, बड़े से छोटा हो जाता है तो डिवाइड करते हैं, राइट? इट इज़ कॉमन सेंस. नाउ लुक हियर, 7 21 हो गया मतलब मल्टीप्लाई हुआ है, बड़ा हो गया. तो 2 भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई होके बड़ा नंबर हो जाएगा. तो वो कौन सा नंबर होगा वो पता करने के लिए जो गिवन हमारे पास सेट है डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर का, यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर का सेट है, उसको हम डिवाइड करके क्वोशिएंट निकालेंगे. दैट मीन्स 7 के टेबल में 21 कितने बार आता है? 7 3s are 21. इसी 3 को लेके ऊपर वाले 2 को जिसका पार्टनर मिसिंग है उस 3 से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 2 3s are 6. 6/21 is the equivalent fraction of 2/7. बी पार्ट करने से आपको ज़्यादा क्लियर होगा. सबसे पहले तो हमारे पास कौन सा पेयर है? 11 and 22. 15 का पार्टनर गायब है, 11 का पार्टनर 22 है जो बड़ा हो गया. इसका मतलब 11 मल्टीप्लाई हुआ होगा. 15 को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई होना है जिससे 11 मल्टीप्लाई होकर 22 हुआ है. कैसे पता चले? 11 के टेबल में 22 कितने टाइम्स आता है? 11 2s are 22. सो 15 2s are 30. ईजिली आपको मिल गया. नाउ लुक एट सी पार्ट. 5 and 30. सबसे पहले देखो कौन सा पार्टनर्स पेयर अवेलेबल है. 5 and 30 अवेलेबल है जिससे हमें क्वोशिएंट मिलेगा, राइट? जो मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा. नाउ यू स्टूडेंट्स देखो 35 हो गया, छोटा हो गया तो डिवाइड हुआ होगा. 42 को भी हमें उसी नंबर से डिवाइड करना है जिससे ये 35 बन गया है. तो फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड आउट करो. 5 के टेबल में 30 कितने बार आता है? 5 6 are 30. तो वो क्वेश्चन है 6. इस 6 को लेके 42 से डिवाइड कर दो ताकि हमें एक छोटा नंबर मिल जाए. अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बड़ा नंबर मिलेगा जो कि हमें नहीं चाहिए, क्योंकि 30 छोटा होके 5 हो गया. तो 42 को भी छोटा करके हमें नंबर लिखना है. सो डिवाइड 42 and 6. इन द टेबल ऑफ 6 42 कम्स 7 times. So write 7. Look here, D part. Which pair is given? 64 and 4. That means इसको तो पक्का हमें we have to divide. 64 and 4 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलता है 4 1s are 4, 6 minus 4 is 2, 2 4 24 and 4 8s are 4 7s are 24. Sorry, 4 6 are 24, isn't it students? So 16 टाइम्स आपका 4 64 को डिवाइड करता है, राइट? हमें क्वेश्चन मिल गया 16. अब ये 16 1 से होगा क्या? देखो
1 से हमें एक ब्लैंक में जाना है, मिसिंग नंबर में जाना है। 4 कैसे गया 64 के पास, बड़े होके मतलब मल्टीप्लाई हुआ, 4 16s are 64, सो 1 16s are 16। तो आपको चेक करना है कि जो गिवन नंबर है, गिवन पेयर है, वो बड़ा हुआ है या छोटा हुआ है। वैसे ही आपका मिसिंग नंबर आपको मिलेगा। 4 64 बनने पर मल्टीप्लाई हुआ है क्योंकि बड़ा था, 1 भी मल्टीप्लाई होगा क्वोशंट से। इस तरीके से आप करेंगे। I have turned the page, come to page question number 5. Write 4 unit fractions. Remember unit fraction which has numerator as 1 with denominators less than or equal to 20. We know unit fraction के numerator तो 1 होंगे, but what about denominator? Denominator is given as less than or equal to 20. So हमें only 4 fractions लेने हैं, 1 2 3 4, जिसके numerator तो 1 होंगे, right? What about the denominators? इक्वल हो सकता है 20 के और लेस देन 20 हो सकता है, तो कुछ भी लिख सकते हो अब। लेस देन 22 यू कैन राइट, 5 यू कैन राइट, 7 इवन 20 यू कैन राइट, बिकॉज यहाँ पे लिखा है इक्वल भी हो सकता है डिनोमिनेटर 20 के। सो आई हैव रिटन, यू कैन ऑल्सो राइट एनी अदर यूनिट फ्रैक्शंस। नंबर 9, कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एंड पुट द करेक्ट साइन। नाउ हाउ विल यू कंपेयर? कंपेरिजन में स्टूडेंट्स, एक्चुअली मैं आपको इतनी जल्दी इसलिए पढ़ा रही हूँ बिकॉज इन क्लास 4 इन द प्रीवियस क्लास वी हैव ऑलरेडी स्टडीड ऑल दीज थिंग्स, इट्स जस्ट अ रिविजन. Look at this A part. When we are comparing and the denominator are same, then we will do proper comparison of the numerator. क्योंकि नीचे तो सेम है डिनोमिनेटर्स, तो कंपैरिजन बड़ा छोटा कहाँ करेंगे? न्यूमरेटर में करेंगे। 13 इज ग्रेटर और 11 इज ग्रेटर, 13 इज ग्रेटर, सो यहाँ पे आपकी प्रॉपर कंपैरिजन होता है। जो कंपैरिजन हम करते हैं, जो नंबर बड़ा है वो बड़ा है, राइट? नाउ इफ यू लुक एट दिस C part, we will go to B part later. C part में अगर देखोगे यहाँ पे क्या हुआ है, look at this, 14 are same, that means the numerator is same. Earlier denominator was same, तो हमने proper comparison करा numerator का. But what if the numerator is same, we will do improper comparison of the denominator. ये word मैंने अपने आप evaluate करा है, उसमें क्या करना है, improper comparison of the denominator, मतलब कि जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा, इसलिए इम्प्रॉपर वर्ड मैंने उसको दिया है, ठीक है? सो व्हेन द न्यूमरेटर इज सेम, डू इम्प्रॉपर कंपैरिजन ऑफ द डिनोमिनेटर, मतलब जो छोटा है वो बड़ा होगा, जो बड़ा है वो छोटा होगा. नाउ बी पार्ट, here neither the denominator are same nor the numerator are same. In this case we will multiply, cross multiply. हम ऐसे cross multiply करेंगे, 4 and 6 को multiply करेंगे, 4 6 are 24, 5 and 5 5s are 25. Now tell me which is greater, 24 or 25? You will say 25, so put the greater than sign towards 25, that means 5/6. Similarly यहाँ पे अगर आप देखोगे, whenever we are comparing two mixed fraction, तो पहले ना उसके whole number को compare करो. When we are comparing whole number 1 1, वो तो same है, तो हमें compare क्या करना पड़ेगा? We will compare the proper fraction. Proper fraction में वही हालत है, neither the numerator are same nor the denominator. So what will we do? We will cross multiply. 12 12s होता है 144, 15 11s होता है 15 1s 15, carry 1, 15 1s 15, 15 plus 1 is 16, 165. So which is greater, 144 or 165? You will say 165. So yes dear, this will be the greater side. Coming to the next, arrange the following fraction in ascending order. Ascending order है क्या? Ascending order is smaller to greater. अगर आपको comparison करना आ गया है तो आप तो smaller to greater भी form कर लोगे. Here denominator are same, right? So we will compare the numerator. जो छोटा होगा वो number 1 होगा, which is the smaller numerator 2. So this is number 1. पहला ascending order में first fraction is this. Second fraction is 4/9. Third fraction is 5/9 and fourth fraction is 7/9, right? No need to do a part of question number 10 and 11 in the copy. Question number 11, arrange the following fractions in descending order. Descending order में look at the denominator first. और अगर आपको fractions में को order में place करना है तो उनके denominator same होने चाहिए. Denominator are same, so we have to compare the whole or the numerator of the प्रॉपर फ्रैक्शन. सबसे पहले होल से स्टार्ट करते, 3 7 5 4. डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स बिगर टू स्मॉलर. विच इज द बिगेस्ट नंबर अमंग 3 7 5 4?
7. सो इसमें हम नंबर 1 लिखेंगे. आफ्टर 7 विच इज़ द बिगर वन? 5. दिस इज नंबर 2 फ्रैक्शन. देन 4, नंबर 3 फ्रैक्शन. देन 3 इज द स्मॉलेस्ट, सो नंबर 4. इस तरीके से आप अरेंज बुक में करते हैं, राइट. क्वेश्चन नंबर 12. एक्सप्रेस ईच फिगर एज अ फ्रैक्शन एंड अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे भी करना है, स्मॉलर टू बिगर. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इट इज? 2. how many total parts? 1 2 3 4 5 6, so it is 2 by 6. 1 2 3 4, 4 is the shaded part and out of 6, right, total parts are 6. here कैसे आप इस फ्रैक्शन, इस शेडेड पार्ट को फ्रैक्शन में लिखोगे? 1 by 6. how will you write the shaded part as fraction? 1 2 3, 3 out of 6. here 5 out of 6. now it's turn to arrange them in ascending order, smaller to bigger. You can see the denominator are same, so numerator को compare करके smaller to bigger में करो. which is smaller? 2 4 1 3 5 1. so ये आपका हो गया number 1. then number 2, number 3, number 4 and number 5. जिस तरीके से हमने इनको अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में, सेम वे वी हैव अरेंज दिस, राइट. बी पार्ट यू विल डू योरसेल्फ. फर्स्ट राइट द फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड ग्रीन पार्ट and then arrange in ascending order. Now I will show you the copy work. So you will write these facts, pause the video and then write neatly in the copy. Avoid these rough work. Then some questions which I have not explained, write 3 equivalent fractions by multiplying. यहाँ पे हम जो given number है, we will take any 3 numbers. For example मैंने 2 लिया, 3, 4, मैंने 3 different numbers लिए and I have multiplied the given fraction with them, right? उनको मल्टीप्लाई करके बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, हमें नंबर मिलते हैं, फ्रैक्शन मिलता है आई मीन, और वही फ्रैक्शन गिवन फ्रैक्शन के इक्वल होता है. दिस इज हाउ वी फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. इसी मल्टीप्लाइंग को अगर हम डिवाइड करें, फॉर दैट वी हैव टू फाइंड द कॉमन फैक्टर. 54 और 135 को डिवाइड करने वाला सिंगल नंबर हमें ढूंढना है. सो मैंने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यूज़ करके फाइंड आउट करा कि 3 से 54 135 दोनों डिवाइड होते हैं. सो वी हैव टू फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. डिवाइड करके हमें लिखना है. दिस इज अवर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. 9 कैन ऑल्सो डिवाइड दीज 2 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. सो फाइंड द आंसर. ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है. एंड द प्रोडक्ट ऑफ 9 and 3 ऑल्सो कैन डिवाइड 54 and 135. 9 3s are 27. So 27 से भी डिवाइड करके देखा मैंने. दिस इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. फाइनली जो मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिला डिवाइड करने के बाद, आई हैव प्लेस्ड देम विद द गिवन फ्रैक्शन. ये 54 135 बराबर है 1845, 6/15, 2/5 के. राइट. आई हैव डन ए पार्ट. रेस्ट ऑफ द पार्ट्स इज योर होमवर्क. यू विल डू एंड एक्सरसाइज देम. क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट इन लोएस्ट टर्म. स्टूडेंट्स, लोएस्ट टर्म का मतलब होता क्या है? लोएस्ट टर्म का मतलब होता है जो हमने यहाँ पे 45/60 का हमें HCF फाइंड आउट करना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है. लोएस्ट टर्म का मतलब होता है ऐसा फ्रैक्शन फाइंड आउट करना जो फर्दर किसी और नंबर से, कॉमन नंबर से डिवाइड ना हो पाए. अब जैसे मैं फाइनल आंसर 3/4 दिखा रही हूँ 45/60 का. 3/4 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, राइट, कि आपका कोई डिफरेंट नंबर आ जाए. तो दिस इज़ द लोएस्ट टर्म. और इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे? यू विल फाइंड द HCF ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. HCF फाइंड आउट करेंगे कॉमन डिवीजन मेथड से, जो प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था. मुझे मिला 15 से आप दोनों को डिवाइड करेंगे. 15 के टेबल में 45 कम्स 3 टाइम्स, इन द टेबल ऑफ 15 60 कम्स 4 टाइम्स. सो 3/4 इज द फाइनल लोएस्ट टर्म ऑफ द गिवन फ्रैक्शन. 7th क्वेश्चन, कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन. कैसे कन्वर्ट करते हैं? बाय यूजिंग डिवीजन. ओके, यू विल डिवाइड द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर. मैंने 11 से 98 को डिवाइड करा, ठीक है. वो डिविजिबल नहीं होगा, मेक श्योर कि वो डिवाइड नहीं होगा, राइट. उसमें रिमाइंडर मिलेगा. अब इसी को, दिस इज क्वेश्चन, दिस इज रिमाइंडर एंड दिस इज डिवाइजर, इन्हीं तीनों को हमें अरेंज करना है ताकि वो मिक्स फ्रैक्शन दिखे. कैसे? फर्स्ट राइट द quotient written, then write the
remainder as the numerator and the divisor as the denominator. So अगर आपको याद करना तो इस फॉर्म को याद रखना, ये v बना, राइट, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर. सो 8 10 by 11 इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है, 8 10 by 11, राइट. इस तरीके से आप नेक्स्ट रेस्ट पार्ट्स करेंगे. 8th क्वेश्चन, कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शंस टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन इज गिवन टू यू. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे करोगे, यहाँ पे आपको अप्लाई करना है 3 into 25, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 12 ऐड करना है. सो यू विल राइट लाइक दिस, दिस इज योर क्वोशंट मल्टीप्लाई बाय योर डिवाइजर प्लस रिमाइंडर. 13 into 25 plus 12 and the denominator will be denominator only. ठीक है, 25 remains same. 25 was denominator in the mixed fraction, 25 will remain denominator in the improper fraction. 13 and 25 को multiply करके write the answer, plus 12 add करके 337 is the numerator and 25 remains the denominator. So finally I have written the conclusion line that ये वाला mixed fraction आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनता है इस तरीके से. असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कैसे करेंगे, मैंने आपके लिए एक पार्ट किया है, सी पार्ट आप करेंगे. असेंडिंग ऑर्डर में कैसे करोगे, सी स्टूडेंट्स, आप असेंडिंग ऑर्डर तभी कर सकते हो जब आप डिनोमिनेटर सेम करो, सेम डिनोमिनेटर रिमेन रहेगा. सो फॉर मेकिंग द डिनोमिनेटर सेम वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ द गिवन डिनोमिनेटर, जो कि सेम नहीं है, राइट, दे आर नॉट लाइक फ्रैक्शंस. लाइक फ्रैक्शंस करेंगे उसको एलसीएम लेके. 9 and 7 इज द नंबर. 9 and 7 का एलसीएम 63 होता है. ये क्विकली निकालने के लिए आपको क्या करना है, अगर आपको पता है कि जिनके आप एलसीएम निकाल रहे हैं वो को प्राइम नंबर से, मतलब वो किसी एक फैक्टर से डिवाइड नहीं होते, किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं होते दोनों के दोनों, तो आप उनके प्रोडक्ट को ही एलसीएम मान लेते हो और वही होता है. सो 9 and 7 किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं होता, तो 9 7 63, 63 विल बी द एलसीएम. अब मुझे 3/9 को 9 के डिनोमिनेटर को 63 करना है, राइट, लाइक फ्रैक्शन करना है. सो 9 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 63 होगा, ऑब्वियसली द अदर नंबर 7. 9 को 7 से मल्टीप्लाई करा, न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, कोई पार्शलिटी नहीं होगी. हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है जिसका डिनोमिनेटर 63 हो. सो यहाँ पे हमने फाइंड आउट करा 3 7 21. इसी तरीके से 8/9 का हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाला है विद द डिनोमिनेटर 63. सिमिलरली 5/7 का, 9/7 का हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाला विद द डिनोमिनेटर 63. फाइनली मेरे पास 4 फ्रैक्शन आ गए इस प्रोसेस से जो लाइक फ्रैक्शंस है, डिनोमिनेटर सेम है. डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से मैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर पाई, मतलब स्मॉलर टू बिगर. स्मॉलर विच इज 21, देन 45, 56, 81. सो आई हैव रिटन 21, 45, 56, 81. 21 एग्जैक्टली है क्या, 3/9. हमारा एक्चुअल फ्रैक्शन क्या था उसमें हमें आंसर लिखना है, कंक्लूजन लाइन लिखना. 21 इज 3/9, 45 इज 5/7, 56 is 8/9 and 81 is 9/7. So here is the conclusion line. Similarly descending order भी आप इसी तरीके से करोगे, same way. Okay, बस डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सेम एलसीएम करके आपने इनको लाइक फ्रैक्शंस करा. लाइक फ्रैक्शंस के बाद आपको बिगर टू स्मॉलर में करना है, बड़ा नंबर सबसे पहले आएगा, इसलिए मैंने 44 सबसे पहले लिखा, राइट, एंड स्मॉलर नंबर लेटर ऑन. और फिर एक्चुअल जो फ्रैक्शंस थे उनके वो कंक्लूजन लाइन में लिखा. 44/99 एक्चुअली है क्या, 4/9. 27/99 क्या है, 3/11. इस तरीके से आप कंक्लूजन लाइन करोगे. होप यू हैव अंडरस्टूड. स्टूडेंट्स, दिस इज योर क्लास वर्क एंड यू विल डू रेस्ट पार्ट्स एज योर होमवर्क. हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स. गॉड ब्लेस यू.